Good morning, young learners. Welcome back to your English class. I hope you all are fine and doing well. Yesterday, I had explained you about deep water, summarized you the chapter thoroughly. Now, let us start with the explanation. As I had already mentioned you, the deep water is an autobiographical aspect of the author William Douglas. And in this excerpt, actually he had discussed about his aversion to water, and this excerpt is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas, and it reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool. And in this essay he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. So here look at the word aversion. Aversion means fear, fear of water. और अदर यहाँ पे fear of water आप इसको एक term दोगे that is hydrophobia. Hydrophobia is a typical term just we use for aversion to water. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. It means that at what age did Douglas decided to learn to swim? At the age of 10 or 11 years. And where did he decide to learn swimming? There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. तो यहाँ पर ये बता रखा है स्विमिंग के लिए ऑथर ने यमका पूल को ज्वाइन किया जो कि याकिमा में है. और सी व्हाट इज़ याकिमा हियर? The Yakima River is a tributary of the Columbia River in eastern Washington. So, the Yakima River was treacherous. See the word treacherous here. It means it was very dangerous. Means जो रिवर याकिमा रिवर थी वो स्विमिंग सीखने के लिए इट वॉज नॉट सेफ. वो बहुत ही डेंजरस कंसिडर की जाती थी क्योंकि हर दिन उस रिवर में किसी न किसी के डूबने की हमेशा खबर मिलती रहती थी. सो यहाँ पे जो डगलस की जो मदर है वो उसको वार्न करती है नॉट टू जस्ट गो टू द रिवर याकिमा. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. But the Yamka pool was safe. And now see, जो exactly कहाँ पे वो स्विमिंग सीखता है जो डगलस है इट इज़ एट द यमका पूल. कहा है ये बहुत सेफ़ है एक स्विमिंग सीखने के लिए जहाँ पे बच्चा अच्छा स्विमिंग सीख सकता है विदाउट एनी हैजर्डियस getting into trouble. It was only and why this Yamka pool was safe. क्यों safe consider किया जाता था? Because it was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. Shallow end से 2 से 3 deep मतलब shallow था end जो है उसका 2 से लेकर 3 feet deep था shallow end पे. And while it was 9 feet deep at the other और बाकी जो other side है वहाँ पे वो 9 feet deep था. The drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. I hit it to walk. See, on this page, this is a Yakima River, which is a tributary of the Columbia River. So I got a pair of water wings and went to the pool. I hit it to walk naked into it and show her my skinny legs, but I subdued my pride and did it. It means that when he started to learn swimming तो वहाँ पर उसको स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के जाना था स्विमिंग पूल में बट एक्चुअली लेकिन जो उसकी जो मतलब जो टांगे थी वो इतनी ज़्यादा पतली थी दैट ही जस्ट डिडंट वांट टू बी just to go in water naked. But still he has to learn swimming. उसको स्विमिंग तो सीखनी थी.
but I subdued my pride. See the word subdued, it means he overcame the pride and did it means just he had to wear it. उसको तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना ही था, उसके बगैर वो स्विमिंग नहीं कर सकता था या नहीं सीख सकता था, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वेयर. From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. See the word from the beginning, शुरू से ही ये जो उसको aversion क्या है, मतलब fear to the water. When I was in it, स्टार्टिंग से उसको इतना डर था पानी से जब भी वो उसमें जाता. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. Now see, उसको जो ये aversion है, fear है, देखो स्टूडेंट्स बेटा, fear हर किसी को होता है, किसी न किसी चीज़ का. इसको हाइड्रोफोबिया है, किसी को हाइट का फियर है, राइट, किसी को जो ड्रीम्स, आपके जो टेरेबल ड्रीम्स आते हैं, आपके किन्हीं को उनसे उनसे डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है. सो एवरीवन टू सम एक्सटेंट एवरीवन हैज़ फियर. बट यहाँ पर जो ऑथर है वो आपने फियर को बड़ा ही खुल के बताया दैट आई हैड अ फियर ऑफ वाटर. और ये फियर दिस स्टार्टेड, ये जो फियर उनको डेवलप हुआ था, किस एज में उसको ये फियर डेवलप हुआ था, दैट इट वॉज एट द एज ऑफ 3 or 4 years. और कब हुआ था, व्हेन ही वॉज विद हिज फादर टू द बीच इन कैलिफोर्निया, बीच में हुआ था. सो एंड हाउ डिड इट हैपन, देखो यहाँ पे कैसे हुआ था. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ. सर्फ मीन्स अ वेव, मतलब जैसे वेव आती है तो दोनों खड़े थे, कौन, फादर एंड दिस विलियम डगलस, उसके फादर के साथ. मतलब वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो अवर्जन है, ये जो फियर है, उसको किस एज में शुरू हुआ था. अब हालांकि नाउ ही हैज़ स्टार्टेड लर्निंग स्विमिंग, अब वो 10 से 11 साल का हो गया है, लेकिन उससे पहले भी उसको फियर था. कहा ना उसमें कि मैं जब भी पानी में जाता हूँ मुझे बहुत डर लगता है पानी में जाने से. दो ही जस्ट ही हैज़ टू लर्न स्विमिंग, बट इन फैक्ट ही हैड दैट फियर ऑफ वाटर. और वो जो फियर ऑफ वाटर है वो डेवलप हुआ था एट द एज ऑफ 3 to 4, जब वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच जाता है. They together in the surf, I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. वो उसके फादर के साथ खड़ा होता है, उसके फादर ने उसका हाथ पकड़ा होता है, तभी एक मतलब ह्यूज वेव्स आती हैं और वो उसके ऊपर से उसको गिरा देती है और वेव्स उसके ऊपर से जाती हैं. I was buried in water. तो उसे लगा वो तो पानी में डूब गया. My breath was gone. I was frightened. ऐसा लगा सांस बंद हो गया, बच्चा बहुत ज़्यादा घबरा गया जब वो वेव्स उसके ऊपर से गई. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. अभी तो छोटा बच्चा है ना, 3-4 साल का है. इनफैक्ट उसको पता था, ही न्यू दैट हिज फादर इज विद हिम, बट स्टिल एक फादर तो एक अडल्ट है, ग्रोन अप की वजह के उस लेवल से सोचेगा कि भाई मैं अपने बेटे के साथ हूँ, मेरे बेटे को क्या डर है. बट लेकिन उस बच्चे को साइकोलॉजिकली सोचो, वो 3 to 4 years ओल्ड है, उसके लिए तो ये वेव्स बहुत ज़्यादा क्या है, ओवर पावरिंग फोर्स लगा था उसको, और उसके लगे भाई वो तो डूब जाएगा, उसकी सांसें बंद हो जाएंगी, और उस टाइम उसको बहुत ज़्यादा घबराहट फील हुई. My introduction to the Yamka swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. अब now see, माई इंट्रोडक्शन, जब वो यमका पूल जाता है स्विमिंग सीखने के लिए, क्योंकि जब भी वो पानी को देखता है, व्हेनेवर वो यमका पूल जैसे ही जाता है, उसकी जो पुरानी मेमोरीज हैं, जो अनप्लेजेंट मेमोरीज किसको कहा गया है, एट द एज ऑफ 3 or 4 व्हेन ही वेंट टू कैलिफोर्निया बीच विद हिज फादर, का वो मेमोरीज, वो 3-4 साल की मेमोरीज जो उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, ये जो मिस हैपनिंग उसके साथ हुई थी, अब जैसे ही वो पानी में जाता है उसको वो चीज़ें, पुरानी चीज़ें याद आती हैं. But in a little while I gathered confidence. मतलब वही वाली बात है ना, if we have a will, if we have a determination, if we boost our confidence, we are well determined, तो हम हर फियर को दूर कर सकते हैं. सो वैसे ही डगलस ने पूरी कोशिश की, अपना हिम्मत जुटाई. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. एपिंग होता है कॉपी करना, किसी को फॉलो करना. अब वहाँ पर उसने वाटर विंग्स ले लिए वहाँ पे स्विमिंग करने के लिए, और वो बाकी बच्चों को देख रहा है पानी में पैड कर रहा है, और बाकी बच्चे जैसे कर रहे हैं, मतलब पानी में स्विम करना, वाटर विंग से मूव करना,
सो वो बाकी बच्चों को फॉलो कर रहा है और वो उनको कॉपी करके वैसे ही मतलब एप करके कॉपी करके उनको तैरने की कोशिश कर रहा है. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. अभी एक्चुअली उसने थोड़ी कोशिश ही की थी अपने जो ओल्ड मेमोरीज़ हैं, जो कैलिफोर्निया बीच की जो मेमोरीज़ उसके साथ हैं, उसको बस थोड़ा सा मतलब टू फील एट ईज़, थोड़ा पानी में जाना उसको थोड़ा सही लगा कि चलो भाई मैं स्विमिंग सीख सकता हूँ. उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया और ये चीज़ें वो 2 or 3 टाइम्स करता था डिफरेंट डेज में. When the misadventure happened, underline this statement, student. This is very important. What misadventure the writer is talking about? ऐसी क्या मिस हैपनिंग यमका पूल पे हुई वो देखिए. I went to the pool when no one else was there. Actually, what happened one day? Actually, यमका पूल पे तो स्विमिंग करने के लिए जाता ही है. So on that day, he reached earlier. जो बाकी बच्चे हैं वो यमका यहाँ पे यहाँ पे जो यमका पूल है यहाँ पे बाकी बच्चे नहीं आए थे. He reached earlier and he just sat down at the pool. The place was quiet. There, the water was still, and the tile bottom was as white and clean as a bathtub. वो बैठा हुआ है वहाँ पे. ही वॉज सिटिंग देयर और वो मतलब एक्चुअली ही वॉज ऑब्जर्विंग द प्लेस. एवरीथिंग वॉज क्वाइट, सब शांत है. अब वो उस पानी को देख रहा है जिससे उसको डर है, जिसको फियर है कि पानी कितना स्टिल है. एंड द टाइटल बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब. जब वो नीचे देखता है और नीचे मतलब पानी इतना क्लियर है, मतलब सब कुछ विजिबल है. जो टाइल्स है नीचे, जो नीचे सरफेस है वो भी बड़ी ही ईजीली मतलब पानी के थ्रू वो देख सकता है, विजिबल है. एंड क्लीन एज अ बाथ टब. और यहाँ पर बाथ टब के साथ कंपेयर किया. जैसे बाथ टब में पानी जो होता है बच्चा नहाता है तो बहुत ही क्लियर है, विजिबल है, वैसे ही जो स्विमिंग पूल में वो जो नीचे सरफेस है वो एक बाथ टब से कंपेयर किया और उसकी जो सरफेस है वो क्लियर है. I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. वो अकेले नहीं गया, उसको डर लगता था. इवन ही वॉज टिमिड ऑल्सो. सो ही सैड ऑन द साइड ऑफ द पूल. पूल की साइड में बैठ गया और उसे लगा कि लेट द अदर स्टूडेंट्स कम, बाकी बच्चे आ जाते हैं तो उसके बाद मैं स्विम करता हूँ. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूशियर ऑफ अ बॉय. बस उसको वहाँ बैठे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था. देन ऑल ऑफ ए सडन एक ब्रूशियर होता है मतलब पावरफुल, हट्टा खट्टा, रोबोस्ट, एक फिजिक अच्छा फिजिक वाला लड़का आया. प्रॉबेबली 18 years old. और वो लड़का 18 साल का था. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, मीन्स वो ग्रोन अप था. ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शॉट रिपलिंग मसल्स. मतलब हट्टा खट्टा था उसके, मतलब रिपलिंग मसल्स थे उसके. ही ईल्ड हाई स्किनी. हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड. अब यहाँ पे हाउ स्किनी वो उसको यहाँ पे एक तरह से टोन करता है, एक तरह से उसको मतलब टीज करता है. अरे दुबले पतले, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक, कैसे तैरना चाहोगे. और वो वहीं पे उस पोजीशन में बैठा होता है जो डगलस है. विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड. उसने क्या किया उस लड़के ने, विलियम डगलस वो सिटिंग देयर ऑन द पूल साइड, उसने उसको वैसे उसी पोजीशन में उठाया और उसको टोस कर दिया, उसको पानी के अंदर फेंक दिया. और कहाँ की तरफ उसको फेंका, डीप एंड की तरफ फेंका जहाँ पे वो 9 feet था वाटर. I landed in a sitting position, swallowed water, and went at once to the bottom. I landed in sitting position क्योंकि he was sitting there. आराम से बैठा. उसे कुछ ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि भाई ये जो बॉय आ रहा है, ये जो लड़का है मुझे उठा के इस तरीके से मुझे इस पूल में डाल देगा. सो जिस पोजीशन में बैठा है उसी पोजीशन में वो मतलब पानी में उसको फेंका गया और उसी पोजीशन में वो नीचे नीचे कहाँ चला गया, नीचे, बिकॉज उसको स्विमिंग तो आती थी. ही डिडंट नो हाउ टू स्विम. एंड मोर ओवर स्वेलोड वाटर. अब उसके मुंह में पानी चला गया, पानी निकल गया वो. एंड वेन इट वंस टू द बॉटम. और तुरंत बॉटम की तरफ, नीचे की तरफ जाने लगा पूल पे. आई वॉज फ्राइटेंड. मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, विलियम डगलस बोल रहा है.
बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। देखो बेटा, यहाँ पे जो विट्स का मतलब कहा गया है कि मतलब अपने होश खोना, इंटेलिजेंस। कहा मैं डर ज़रूर गया था, लेकिन मैंने अपना होश नहीं खोया था, मेरी सूझबूझ नहीं खोई थी, क्योंकि उसे पता था। तो यहाँ पर क्या कैटस का शो कर रहा है, दैट मीन्स ही नो हाउ टू अप्लाई हिज माइंड, हाउ मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम किस तरह से अपने आप को बूस्ट अप करते हैं और किस तरह से उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम अपना अपना कहते हैं ना होश नहीं खोते, और उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। सो ये वही मतलब इसका। आई वॉज फ्राइटन बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स। ऑन द वे मतलब जब वो पूल में उसने उसको फेंका, जब वो नीचे की तरफ जा रहा है। आई प्लान, और उसने जैसे नीचे जा रहा है उसने प्लानिंग कर लिया कि मुझे करना क्या, वॉट आई हैव टू डू। वेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जम्प। मतलब ही इज़ प्लानिंग है, यहाँ पे प्लान कर रहा है कि जैसे ही मेरे जो पैर हैं, मैं नीचे जाऊँगा और मैं अपने पैरों से जोर से, बॉटम मीन्स जो नीचे टाइल लगी है, फ्लोर है जो पूल का, उसमें मैं जाके जोर से हिट करूँगा। आई वुड मेक अ बिग जम्प। बिग जम्प मतलब मैं और जोर से ऊपर की तरफ आऊँगा, एक तैराक की तरह। कम टू द सर्फिस, किसकी सर्फिस पे, ऑन द सर्फिस ऑफ द पूल। लाई फ्लैट ऑन इट, फ्लैट ऑन मतलब नीचे से जोर से पैर मारूंगा, सर्फिस के ऊपर आ जाऊंगा, और एक स्विमर की तरह बैक बैक मतलब पीठ से ऐसे पूरा, और कहाँ पे आ जाऊंगा, ऑन दी एट द टॉप ऑफ द पूल। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और एज ऑफ द पूल तक मैं पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन ये जो उसने सोच तो लिया, लेकिन इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन। Those 90 feet were more like 90। अब कहने को 9 फीट है, लेकिन अगर हमें स्विमिंग नहीं आती है, कोई हमें इतने थोड़े से गहरे पानी में डाल दे तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा डीप होगा। उसी तरह से डगलस बोल रहा है, वो जो 9 फीट है ना, मैं बता सकता हूँ मैंने कैसा एक्सपीरियंस किया था। मुझे मतलब हाउ फ्राइटनड आई वॉज कि वो 9 फीट मुझे 90 फीट जैसा गहरा लग रहा है कि मैं इतना नीचे जा रहा हूँ। बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। वो नीचे जाता ही माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, क्योंकि उसने कहा ना आई स्वेलोड वाटर। उसने जैसे ही जो पानी है उसके मुंह में गया और मुंह के थ्रू मतलब लंग, और ये जो आपके जो फुट पाइप है उसमें पानी एंटर करके आप टू चेस्ट तक, उसकी जो चेस्ट पे पूरी पूरी मतलब वाटर चला गया था, जो मतलब नो लॉन्गर टू जस्ट टेक, सांस नहीं ले सकता था, एंड यू वर रेडी टू बर्स्ट। बट when my feet hit bottom I summoned होता है जुटाना, all my strength and made what I thought was a great spring upwards। जब उसने कहा बट, लेकिन मेरे पैर जैसे ही बॉटम नीचे सरफेस पे टच हुआ, he boosted up his courage and made what I thought was a great spring upwards। I imagined I would bob to the surface like a cork। Instead I came up slowly। कि यहाँ पर जो विलियम डगलस है, एक्चुअली ही थॉट, ही प्लान कि मैं जैसे नीचे जाऊँगा, नीचे जो टाइल है, मैं ज़ोर से आई विल जस्ट थर्स्ट, पूरे फोर्स के साथ मैं अपना पैर मारूंगा और बड़ी ही तीव्र गति से, बड़ी मतलब फास्ट में बॉब टू द सरफेस की तरफ आ जाऊँगा, एक कॉक की तरह। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो एक जो कॉक की तरह एकदम उछल के ऊपर की तरफ नहीं आया, बट वॉट हैपन टू हिम, इंस्टेड आई केम अप स्लोली, कि उसकी जो जैसा उसने सोचा था ना उस हिसाब से वो इतनी फास्टली ऊपर नहीं आया, बट जस्ट उसकी जो स्पीड है थोड़ी स्लो थी। ऊपर तो आया लेकिन इतना इतना फास्ट, इतना स्पीडली नहीं आया। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग but water that had a dirty yellow thing to it grew panically। So what he said here, उसका क्या एक्सपीरियंस था, when he opened his eyes he saw nothing, उसको कुछ नहीं दिखा, he was so frightened and in fact सब कहीं हर जगह उसको पानी पानी नज़र आ रहा था। had a dirty yellow sting होता है slight color, yellow slight color। I grew panicky, बहुत ज़्यादा वो घबरा गया। I reached up as if to grab a rope and my hands
clutched only at water. I was suffocating. See how the boy got frightened, as hardly he was about 10 to 11 years. फिर भी यहाँ पे जस्ट उसकी विल पावर, उसका डिटर्मिनेशन की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि मतलब अगर कोई हमें पानी में डाले और हमें स्विमिंग नहीं आए, सो वॉट, मतलब वी डोंट नो हाउ टू स्विम, लेकिन किसी तरह से हम अपने हाथ ऊपर करेंगे, हम चीखने की कोशिश करेंगे और हाथ ऐसे ऊपर करेंगे कि शायद कोई हमें कहीं से कोई रोप मिल जाए, कोई लैडर मिल जाए कि जिससे पकड़ के हम सरफेस के पानी से ऊपर आ जाए, राइट. सो वैसे ही आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप. रीच, वो नीचे से छलांग लगा के ऊपर की तरफ आया था ना, तो उसने सा टू ग्रैब करना, जकड़ना कि कहीं से कोई रोप आ जाए. माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, कि रोप को उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन हाथ में उसके क्या आया, ओनली वाटर, बिकॉज वाटर वॉज देयर. और उसके अलावा कोई वहाँ पे कोई रोप, कोई रस्सी, कोई लेडर है नहीं कि जिसकी वजह से वो बाहर आ सके. आई वॉज सफोकेटिंग, कहना इट बर्स्ट माई लंग्स, नो ऑक्सीजन, सो ही वॉज फीलिंग सफोकेटिंग, उसका दम घुट रहा था. आई ट्राई टू ईल मीन्स चीखना, मतलब उसे चिल्लाने की कोशिश की, स्क्रीम करने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट. देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ. पहले जैसे वो थोड़ा पानी के ऊपर आता है, थोड़ी उसकी आंखें बाहर होती हैं, थोड़ा नोज़ होता है, लेकिन जो उसका जो पूरा फेस है, माउथ है, वो पानी से बाहर नहीं आ पाया. I flayed at the surface of the water. यहाँ पर flayed means by using haunch और by feet, ऊपर की तरफ आना. At the surface of the water. Swallowed and choked. वही वाली बात है, swallowed पानी उसे निकल गया, choked मतलब choked means मतलब कुछ ऐसा फील होना, suffocated फील होना. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights. मतलब उसने अपने पैरों पे चलाने की बहुत कोशिश की, ऊपर लाने की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड फ्रीज्ड. कहने का मतलब है यहाँ पे जो उसके जो पैर जो हैं बहुत ही हैवी फील करने लगे, ऐसा लगने लगा जो उसके जो पैर हैं वो पैरालाइज हो गए हैं, रिजिड, बहुत हार्ड हो गए हैं, स्टिफ हो गए हैं, दे अनएबल टू मूव. अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और ऐसा लग रहा था मुझे नीचे नीचे कोई चीज़ बड़े ज़ोर से नीचे की तरफ खींच रही है. आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी. इट मीन्स दैट नो वन वॉज देयर. ही ट्राइड टू ईल्ड, ही ट्राइड टू स्क्रीम, बट देर वॉज नो वन हु वुड लिसन टू हिम एंड रिस्पॉन्ड टू हिम. कहा उसने चिल्लाने की, आई स्क्रीम, चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी. एवरीवेयर वॉज वाटर वाटर. चीख की आवाज़ किसने सुना, मतलब पानी है, कहा उससे सिर्फ पानी को ही सुनाई दे रहा, हाउ वाटर उसको कैसे सेव करता. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल. और फिर से नाव, फर्स्ट टाइम उसने ट्राई किया, एंड अगेन जैसे ही वो थोड़ा ऊपर आता है, सरफेस पे उतना स्पीडली नहीं पहुंच पाता, एंड अगेन ही वेंट बैक टू द बॉटम ऑफ द pool. Now students, this is all about today's class, and based on this, just after this in the PDF I have given you some questions to do, and I want everyone to do your work honestly, sincerely, and on time. Thank you and have a nice day, students.